Hello, friends. Welcome back to the best DLR set series by Team PrepZone. Today, we are standing on day number 27, and congratulations to everyone. And really, heads off for your dedication that you guys are solving one DLR set every day. And I'm sure at least out of 27 sets that we have solved, around 20, around 18 to 20 sets were really good, moderate to advanced level. I think two or three sets were easy, and rest were moderate. So if you're following this series every day, you are in a very good hand. And for other students who are just starting, for whom this is the first video, watch all the previous 26 videos. Those are of amazing quality. And if in case you want to register for the batch that is starting from April 15, this batch will be taken by me and our team, and it will start from basic till advanced level. Everything will be taught to you live. We don't believe in recorded sessions, and batch is personalized because we only have 40 to 50 students in a batch. So I will be your personal mentor. If you need any help with any section, you can register on this number. You can ping me on this number. We also have discount codes running for the next 2 days. Okay, so just hurry up. I think we just have a few more seats left, and then we are all good to start the batch. That's the batch feedback. And here comes the question for the day. So this is a very important and a very, I think, beautiful question on the concept of bottleneck. So I think once you are into your B school, then you would study this concept of bottleneck, throughput, what is your drum buffer, and all of these terminology as a part of your operational research subject. Or even I think all of you who are working in an e-commerce sector who have an operations background, you guys would know about it. But nevertheless, this is a set, and we are going to learn really good concept. And initially, I will tell you the concept, the entire proof of how the of what is the elaborative and detailed method to solve this set, and then we will analyze a trick so that going forward you see such set you should be able to solve these sets in 4 minutes 5 minutes, not more than that. ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना. Don't skip, don't fast forward, where else you will not learn. And if you're liking this initiative जो रोज का मैं कर रहा हूँ सेट, if you're liking the content, कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो कैसा लग रहा है. And it will take you just 2 minutes to share these playlist link with your friends. काफी ग्रुप्स में तुम हो, and spread the learning. उससे मुझे भी मोटिवेशन रहेगा टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड क्रिएट दीज सेट्स फॉर यू. एंड सबका लर्निंग होगा. बहुत लोगों को पता नहीं रहता डीएलआर में हाउ डू दे स्टार्ट. सो अगर तुम थोड़ा सा शेयर कर दोगे, इट विल रियली रियली हेल्प अस. ठीक है. एंड लाइक तो मतलब ये कर ही देना. इट्स अ 1 second थिंग व्हाइल यू वाचिंग द वीडियो. अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो कर दो, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत करो. ठीक है. आई लीव दैट, like I leave this totally on your judgment. So let's start with the question. The question says the table below gives the process of manufacturing of 4 different processes. Sorry, before moving to the question, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से अटेम्प्ट करो. एटलीस्ट स्पेंड 15 मिनट्स ऑन दिस सेट. काफी अच्छा क्वेश्चन है. एक बार जब खुद से सॉल्व करोगे फिर सॉल्यूशन देखोगे, तो जो लर्निंग होगा दैट इज अनपैरेलल्ड. ठीक है. तो एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना, फिर कमेंट करना कि कितना टाइम लगा, क्या सीखा, एंड कितना सही हुआ. चलो. द टेबल बिलो गिव्स द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ 4 different प्रोडक्ट्स ABCD. ठीक है. और ये 4 मशीन्स के थ्रू जाते हैं. इनको चारों मशीन में जाना है, विच मीन्स प्रोडक्ट ए पहले 1 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 4 से पास हो गई होगा. ठीक है. कुछ नंबर्स गिवन है. दीज नंबर्स इंडिकेट कि यार जो प्रोडक्ट ए है उसको मशीन नंबर 1 में 6 यूनिट्स बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, विच मीन्स 1 यूनिट बनाने के लिए 1/6 विच इज 20 मिनट्स लगेंगे. टोटल 8 घंटे के लिए मशीन चालू रहती है दिन में. ठीक है. एंड ऑल द मशीन्स आर ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट एनी यूनिट दैट इज स्टार्टेड ऑन अ डे इज फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द डे. एक ही दिन मुझे काम खत्म करना है, ऐसा नहीं है कि आधा काम आज कर लिया आधा कल करोगे. यू हैव टू फिनिश द वर्क दैट यू हैव स्टार्टेड. द सेलिंग प्राइसेस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. ठीक है. एंड ऑल मशीन्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली. नाउ देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट आर गिवन. मैक्सिमम यूनिट्स कितनी बना सकता हूँ कौन से प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए मुझे अभी कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा. सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि किसका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. मुझे सेलिंग प्राइस पता है, मुझे यूनिट्स पता चल जाएंगे, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड सी कि किसका ज्यादा है. ठीक है. विच मीन्स सेकंड के लिए मुझे फर्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन क्या है. सी सो द आइडिया इज, अभी तक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन हमेशा पढ़ते हैं डीएलआर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा हो. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थर्ड.
by what percentage does the cost of producing 1 unit of B exceed that of 1 unit of D? ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल का सा क्वेश्चन है। ये तो क्वांट का क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है बी और डी की और फिर कंपेयर करना है। सो द आइडिया इज लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन हम सेट सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी, क्योंकि ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस x है तो x into प्रॉफिट परसेंटेज 12, सो x into 1.12 should be equals to 504। सो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 504 अपॉन 1.12। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 345 अपॉन 1.15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। सो हाउ डू आई सॉल्व दिस, 8 से डिविजिबल है, 8 6 48, 23, 8 1 8, 32, 7 2 4, 7 9 63, 900 by 2, so it is 450। ठीक है, सिमिलरली ऊपर 100 आएगा, लेट्स सॉल्व दिस। 5 से जा रहा है 23, यहाँ पे 5 6 30, 4 5 5 9 45, 23 3 69, तो यहाँ पे हो गया 300। ठीक है, डी का कॉस्ट प्राइस 300 है, बी का 450 है, 150 का डिफरेंस है। सो बाय व्हाट परसेंटेज डज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 unit of B which is 450 exceed that of 1 unit of D 300? तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा 50% का डिफरेंस है। कैसे किया, डिफरेंस कितना है 150, सो 150 by 300 into 100 which is 50%। तो मैंने बिना सेट सॉल्व करे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है सबको, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सेट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे गिवन थी, करेक्ट। तो इफ यू आर फीलिंग लेजी, थोड़ा सा मुंह धो के आ जाओ एंड स्टे विद मी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत जगह काम आएगा एग्जाम में, कैट में, ठीक है। करेक्ट, तो अभी फर्स्ट थिंग इज, सी मुझे पता है कि प्रोडक्ट ए चारों मशीन से जाएगा, बी चारों मशीन से जाएगा, सो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस टेबल। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि यार जो प्रोडक्ट ए है उसका 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 1 2 3 4। तो एक कैसे करना है, सिंपल, 6 यूनिट्स बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 यूनिट में 1/6, 1/6 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 10 मिनट्स। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यार दिस इज 10 मिनट्स पर यूनिट लग रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ए को सेकंड में कितना होगा, 2/8 which is 1/4, 1/4 is 15, similarly 1/3 is 20, right? Similarly 1/5 is 12। क्लियर है ना, 1/5 क्या हुआ, 5 यूनिट को 1 घंटे में लगेगा, तो 1 यूनिट को 1/5 घंटे लगेंगे। 1/5 hours is nothing but 1/5 into 60 which is 60/5, so 12 minutes। ठीक है, so this is 12। Then 1/4 is 15, 1/5 is 12, then I have 1/2 30, then 1/4 is 15, then 1/3 is 20, 1/3 is 20, 1/6 is 20 ka half, so 10, and 1/5 is 12, again 1/3 is 20, 1/4 is 15, 1/5 is 12, and 1/3 is 20। ठीक है, इतने मिनट्स हो गए, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, चलो अभी करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए का जब फॉर एग्जांपल मुझे सबका मैक्सिमम यूनिट्स बताने हैं, राइट, कि यार 480 मिनट्स में टोटल कितने, 8 घंटे, राइट। 8 घंटे मतलब 480 मिनट्स है मेरे पास। 480 मिनट्स में ए के कितने यूनिट बनेंगे, बी के कितने बनेंगे, सी के कितने बनेंगे, डी के कितने बनेंगे मैक्सिमम। अगर मैंने वो निकाल लिया तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी द आइडिया इज टू विजुअलाइज, क्योंकि सी ए पहले फर्स्ट मशीन से जाएगा तो उसको 10 मिनट लगेगा, फिर बी से जाएगा तो 15 मिनट, फिर 20 और फिर 12, तो पहला यूनिट तो निकल जाएगा, राइट। फिर सेकंड यूनिट को कितना टाइम लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक ए का पहला यूनिट निकल चुका होगा सेकंड यूनिट भी कहीं आके पहुंच चुका होगा, राइट। कहाँ पे पहुंचेगा वी डोंट नो, बट वी नो कि वो कहीं किसी स्टेज तक आके वो ऑलरेडी आ चुका होगा। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, तो इसका पहले हम लंबा डिटेल्ड जो सब्जेक्टिव मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, देन वी विल ट्राई टू कैप्चर की क्या लॉजिक है, एंड देन वहां से क्या शॉर्टकट आता है, एंड दैट इज हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई होप यू आर विद मी। अगर इसमें एक कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है। सो लेट्स से मैं अभी पहले ए की बात करता हूँ, ठीक है। चलो, तो लेट मी ड्रॉ अ ब्लॉक ताकि हमको काफी क्लियरली समझ आए, ठीक।
ये मान लो एक ब्लॉग है, ब्लॉग एज इन इट्स अ ब्लॉग जिसमें मैं मशीन 1 है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरे को ए निकालना है, राइट। तो मुझे पता है ए का पहला यूनिट मशीन 1 में 10 मिनट के लिए चलता है, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 4, 5, 6, मैं ऐसे करके एटलीस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये सारा जो डेटा है ये कितना है, दिस इज 10 मिनट्स का, ठीक है। ये क्लियर है ना मैं क्या बना रहा हूँ, मैं ए का पूरा प्रोसेस बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ताकि एग्जाम में हमको इतना ना करना पड़े। बट अभी के लिए आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे दैट व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू डू। बिना समझे कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, एग्जाम में काम नहीं आएगा, ठीक है। समझ के किया सो यू विल बी एबल टू डिराइव ऑन योर ओन, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज मशीन नंबर 1, ठीक है। देन मैं एक काम करता हूँ, मैं मशीन 2 भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ए का जो सबसे पहला यूनिट है वो पहले इसमें आएगा, राइट। पहले 10 मिनट तक तो वो मशीन 1 में आएगा, फिर यहां से निकलने के बाद वो जाएगा मशीन नंबर 2 में, राइट। कितना मिनट लगेगा उसको, उसको पूरा कंप्लीट करने में लगेगा 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि मशीन 2 में 15 मिनट लग रहे हैं एक यूनिट के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 15-15 यूनिट के ब्लॉक्स, 15, 30, देन 15, देन 30, देन 15, देन 30, ठीक है। ये सारे मैंने 15-15 मिनट के ब्लॉग बना लिए। मैं ये बताता हूँ कि इससे आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है, आई विल टेल यू। लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। करेक्ट। सो सी, जब पहला यूनिट आया ए का, तो उसको मशीन नंबर 1 में 10 मिनट लगे, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उतना टाइम लगा। वो जब उसने जैसे ही खत्म किया फिर वो मशीन 2 पे आएगा, राइट। इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन कि उसको सिक्वेंशियली सारे मशीन में जाने, तो मशीन 1 जब में कंप्लीट हो जाएगा ए बनना, तभी वो मशीन 2 में जाएगा, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज ओनली वंस द प्रोडक्ट ए is completed in machine number 1, only then it can go in machine number 2. So only after completing the 10 I have started drawing this 15. फिर जब मैंने 15 भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो मशीन 3 में जाएगा जहां उसको 20 मिनट लगेंगे। अब मुझे पता है कि ये 15 है तो 20 कहाँ पे होगा, थोड़ा सा इससे आगे होगा, राइट। 15 का मुझे 5 लेना है, थोड़ा सा उससे आगे होगा, बचा कितना, ये यहाँ 10 बचा। अभी मुझे यहाँ से 10 लेना है, तो यहाँ पे कहीं आएगा 10, राइट। फिर अभी कितना बचा, 15 में से 10 चले गया, 5 का यूनिट बचा है, तो 5 + 15, ये वापस से 20 बचेगा, ठीक है। और ये कहीं आगे जाएगा वापस, तो आई नो दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20, ठीक है। सो प्रोडक्ट ए पहले 10 मिनट यहाँ पे गिरा, फिर 15 मिनट इधर गया, फिर 20 मिनट्स यहाँ लिया, फिर आफ्टर 20 मिनट्स वो बेसिकली पूरा निकल चुका है, मतलब फ्रॉम मशीन 3। सो मैंने मशीन 1 में ए बना दिया, मशीन 2 में बना दिया, मशीन 3 में बना दिया। अब मशीन 4 में मुझे 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार मशीन 2 में 12 मिनट कहीं इधर होंगे, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा साइकिल है मेरा ए का, कि वो उसने 1 से शुरू किया, 10 मिनट लिया, फिर उसने बी से शुरू किया, 15 मिनट लिया, फिर उसने सी से शुरू किया, 20 मिनट लिया, और फिर डी से शुरू किया, 12 मिनट लिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरा पूरा यूनिट नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कितना टाइम लगा यूनिट 1, मतलब जो पहला यूनिट बनने में कितना टाइम लगा, 10 + 15 + 20 + 12, राइट। आई एम स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट यहाँ पे, तो यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, 20, 30, 40, 50, 50 + 7, 57 मिनट्स मुझे लग गए, ठीक है। पहला यूनिट बनाने में, फर्स्ट यूनिट बनाने में मुझे लग गए 57 मिनट्स, ठीक है। अभी बताओ सेकेंड यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई वांट एवरीवन टू कमेंट एंड टेल मी कि हाउ मच टाइम विल आई टेक टू मेक द सेकेंड यूनिट। सी, मैं लेट मी आल्सो चेंज द कलर ऑफ द पेन, करेक्ट, ठीक है। सो सी सेकेंड यूनिट यहाँ से बन जाएगा इधर, राइट। दिस इज 10, ये यहाँ पे बन चुका है, फिर ये रहा 15, राइट। तो ये यहाँ भी बन चुका है, फिर ये 20, राइट, वो यहाँ पे भी बन चुका है, विच मीन्स इसके बाद मुझे 12 मिनट्स और लगेंगे, करेक्ट, 12। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेकंड यूनिट का जो मुझे लास्ट मशीन 4 है वो बनाने के लिए मुझे, मतलब आई कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट, आई विल हैव टू वेट फॉर मशीन नंबर 3 टू गेट फ्री। only once machine 3 is free, only then the machine 4 can start producing product number A, ठीक है। क्योंकि इसके पहले नहीं बन सकता, क्यों, बिकॉज
इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एनी प्रोडक्ट कि यार मशीन 4 में बनने से पहले उसको मशीन 3 में बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा, फिर जाके ये चीज बनेगी। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया? एक सेकंड, आई थिंक टोटल टाइम निकालने से पहले एक बार हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से कि मैंने क्या किया है। आई विल रिवाइज माई सेल्फ कि जो फर्स्ट यूनिट बनाना था वो तो क्लियर था, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12। बट जो यूनिट 2 बना रहा हूँ उसमें काफी चैलेंज है। उसमें चैलेंज क्या है कि यार मेरे पास एक मशीन है 20, वहां पे स्पीड ऑफ प्रोड्यूसिंग इज क्वाइट स्लो, राइट? क्योंकि एक यूनिट बनाने में वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो बिकॉज एक मशीन सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, सो वी कॉल दैट पर्टिकुलर मशीन एज माय बॉटलनेक। ठीक है, सो दिस इज माय बॉटलनेक। मैं लिख देता हूँ कि कौन सा वर्ड है, बॉटलनेक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यार जो मशीन सबसे स्लो होती है और द मशीन दैट टेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज द बॉटलनेक। एंड वहां पे जाके चीजें फंसती है, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि यार जब मशीन 3 खाली होगी उसके बाद ही मशीन 4 स्टार्ट कर पाएंगे, राइट? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। दिखने में तो आई थिंक इट लुक्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है इफ यू डोंट ड्रॉ दीज डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये भी बोल दिया कि सेकंड यूनिट बनने में अब मुझे कितना टाइम लगता है। एक बार वो वाला पैटर्न देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक का टाइम निकालना है, राइट? तो लेट्स सी, ये 10 मिनट तो लगेंगे ही, ये 15 मिनट्स भी लगेंगे। ठीक है, ये 20 मिनट्स है। एंड मैं एक बार ये ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मैं कौन सा बात कर रहा हूँ। लेट मी ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट इट इज मोर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, मैं को यहाँ से लेकर आई हैव टू फाइंड द टाइम टिल हियर। ठीक है, आई हैव टू फाइंड कि यार कितना टाइम लग रहा है मुझे टोटल यूनिट 2 बनाने में। ठीक है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट? ये मुझे पता है कि दिस इज 12 मिनट्स, राइट? ये मैं यहाँ तक आ गया 12। आई एम एक्चुअली डूइंग बैकवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, कि दिस इज 12 मिनट्स। नाउ फ्रॉम 12 until here, this is 40 minutes, right? 20 plus 20 40, and then this is 15, and then this is 10. तो एक्चुअली मैं यूनिट 2 को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 10 plus 15 plus 40 plus 12. If you just sum this up, this comes out to be 40 50 60 70 77 minutes. ठीक है, so now if you just try to visualize, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यार आपका ये जो 20 मिनट वाला जो है मशीन, जो आपका बॉटल नेक है, उतना इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट? इफ यू ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट कि थर्ड यूनिट बनने में कितना टाइम लगता है, वन थिंग इज तुम उसको डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो कि थर्ड यूनिट यहाँ पे आके बनेगा, राइट? क्योंकि मशीन 3 तब खाली होगी, सो यहाँ पे जाके थर्ड यूनिट बनेगा। ठीक है, तो अगेन व्हाट यू कैन डू इज, पहले यहाँ पे जाके 12 था, अभी इधर जाके 12 है, राइट? सो आई इसेंशियली जस्ट हैव टू ऐड दीस 20 इन माय फाइनल कैलकुलेशन। क्योंकि सी यहाँ तक का तो टाइम सेम था, राइट? द टाइम फ्रॉम हियर अंटिल हियर वाज सेम। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने 12 एक्स्ट्रा ऐड किया था पहले, वो 12 अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? ये 20 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब थर्ड यूनिट को बनने में जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 77 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 97 मिनट्स लगेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फोर्थ यूनिट को बनने में कितना टाइम लगेगा? 97 प्लस 20 विच इज 117, फिर 137, फिर 157। ठीक है, और मुझे निकालने की है कि दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं एक, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एपी बन रही है, और एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो आपका जो भी थ्रूपुट वाली मशीन है जो सबसे स्लो है, वो आपका एपी का डिफरेंस होगा। ठीक है, विच मीन्स ट्रिक क्या है? ट्रिक अभी इसकी ये होगी कि यार फर्स्ट यूनिट को बनाने में 57 मिनट्स लगते हैं, सेकंड को 77 मिनट्स लगते हैं। सो नाउ इफ यू हैव टू जनरलाइज दिस थिंग, again if you are good with sequence and series, if you are good with APGP, you can just generalize this thing by saying कि ठीक है यार, फर्स्ट यूनिट को बनने में 57 लगता है, सेकंड को 77 लगता है। now 57 is nothing but इन चारों नंबर्स का सम, which is nothing but 15 plus 12 plus 10, 37 plus 20, right? 57 को मैं 37 plus 20 करके I can break it. Just stay with me. ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली जो मेरा बॉटल नेक वाली मशीन है, क्योंकि इसी बॉटल नेक तो मेरा मतलब कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा, राइट? तो मैं अभी के लिए बॉटल नेक को हटा रहा हूँ। उसके अलावा आई एम सेइंग कि ठीक है 37 तो बेसिकली सब में ऐड होगा ही होगा, राइट? क्योंकि उतना तो डेफिनेटली सब में ऐड होगा ही होगा। उसके साथ साथ जितना एपी का डिफरेंस है वो बस उसके मल्टीपल्स ऐड होते जाएंगे, विच मीन्स
एक यूनिट बनाने में मुझे लगेगा 37 प्लस 20 मिनट्स, सेकेंड यूनिट बनाने में मुझे लगेगा 37 प्लस 2 इंटू 20, थर्ड यूनिट बनाने में लगेगा मुझे 37 प्लस 3 इंटू 20, right? Which means if I have to generalize this thing, this becomes कि यार 37 प्लस k इंटू डी, एक यूनिट बनाने में इसका एक मल्टीपल है, दो यूनिट बनाने में 2 इंटू 20 है, सो k यूनिट्स बनाने में k इंटू 20 होंगे, एंड दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 480 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास टोटल मिनट्स कितने हैं 480। तो यहाँ से अगेन ये पूरा भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, एग्जाम में इतना नहीं करना है, शॉर्टकट पे अभी अपन आएंगे। ये मैं बेसिकली आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ कि ये चीज कहाँ से, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 37 क्या है, अगेन लेट्स ट्राई टू अभी क्रिएट अ फॉर्मूला। सो 37 इज बेसिकली summation of time taken for non bottleneck machines। ठीक है, कि यार जो मशीन मेरी बॉटलनेक नहीं है उसको हटा के टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 प्लस 12 प्लस 10 37। ठीक है, आपकी 20 क्या है, 20 इज द टाइम टेकन बाय योर बॉटलनेक मशीन। ठीक है, और 480 कितना है टोटल टाइम, व्हिच मींस अगर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस होंगे वो निकालना है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट, यू जस्ट से कि यार 480 minus 37 by 20, so k has to be less than equals to this, right? So for example this number comes out to be say 20, say this number comes out to be 101.37, तो आंसर क्या होगा मेरा 101 होगा, राइट? बिकॉज k कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स, सो आई एम सेइंग कि 101.37 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, तो हम इसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे कि यार जो भी इसके पहले का इंटीजर है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये अभी तक मैं कॉन्सेप्ट डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ गए, यू कैन डिराइव दिस कॉन्सेप्ट्स बाय योर ओन। ठीक है, हम लोग यही बताएंगे तुमको क्लास में भी कि हर चीज का कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेशन क्या है, ताकि एग्जाम में यू डोंट नीड टू मग अप फॉर्मूलाज। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस कॉन्सेप्ट। काफी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी डिफिकल्ट एंड काफी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि क्या करना है मुझे, which means अभी मुझे अगर a के यूनिट्स निकालने हैं, how do I calculate a के यूनिट्स, it is simply 480 minus 37 by 20 का ग्रेडेशन इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कितना होगा ये, 480 minus 40 is 440, 440 plus 3 is 443, 443 by 20 is nothing, 22 point something, so this has to be 22, इसके 22 यूनिट्स होंगे। सिमिलरली अब मुझे बताओ कि b के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे। कुछ नहीं करना, टोटल टाइम कितना है 480 है, इसमें से बॉटलनेक कौन सा है, बॉटलनेक यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बॉटलनेक 20 है। 20 तुम सेकंड मशीन को भी ले सकते हो, फर्स्ट को भी ले सकते हो, द आइडिया इज कोई भी एक बॉटलनेक मशीन पकड़ लो, यहाँ पे 20 है। ठीक है, एंड देन यूज द सेम फॉर्मूला, 480 माइनस 30, सॉरी 480 माइनस बाकी सबका सम, 15 प्लस 15 30 प्लस 12 42, सो 480 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 30 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका क्या होगा 480 माइनस 20 30 42 डिवाइडेड बाय 20, इसका क्या होगा, दिस इज 480 माइनस ये कितना हुआ 20 30 40 47 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इन सबका आपको ग्रेडेशन इंटीजर फंक्शन निकालना है, काफी इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, सो लेट मी सी कि इसका ग्रेडेशन इंटीजर फंक्शन कितना आता है। 480 minus 42 is nothing but 440 minus 2 which is 438, 438 by 13, it has to be 14 point something, so this has to be 14. Similarly, if you just calculate this, this is again 480 minus 40, 440 minus 2, 438, 438 by 20, nothing but 21 point something, so it has to be 21. Similarly, this is 480 minus 47 by 20. So if you just do this, 480 minus 50 is 430 plus 3, 433. 433 by 20 is nothing but 21 point something, so this is 20. ठीक है, so what I have done, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को यू कैन रीविजिट दिस, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टाइम यू वुड सी सच क्वेश्चन, यू वुड रिमेंबर कि यार हमने बेस्ट डीएलआर सीरीज में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको ये वाली टेबल बनानी है कि यार ए को फर्स्ट मशीन में कितना टाइम लगेगा, सेकंड में कितना लगेगा, थर्ड में कितना लगेगा, फोर्थ में कितना लगेगा। ये टेबल आप 2 मिनट में बना सकते हो, आई थिंक 1 मिनट के अंदर ये टेबल बना सकते हो। टेबल बना ली, यू नो कि यार बॉटलनेक कौन सा है, सबसे धीरे वाला मशीन कौन सा है, उसको कर लो सर्कल, टोटल टाइम जितना है माइनस नॉन बॉटलनेक, ये वाला फॉर्मूला लगा दो।
कि टोटल टाइम माइनस नॉन बॉटलनेक वाला मशीन डिवाइडेड बाय जो आपका बॉटलनेक का टाइम है, ठीक है। ये कर लो और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना, बस उतना आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे। तो 22, 14, 21 and 21 are the number of units. ठीक है, now let's see the question. What is the maximum number of units of any product that can be manufactured in a single day? So 22 units of A can be manufactured, so the answer has to be 22. Next question क्या कह रहा है? Let me also write this यार, so that the next question में revenue आया है तो I know selling price picture में आएगा. This is 22, this is 14, this is 21 and this is 21. ठीक है, अब मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। रेवेन्यू इज नथिंग बट जितने मैक्सिमम यूनिट्स होंगे इनटू सेलिंग प्राइस। तो किसका मैक्सिमम होगा वो मुझे देखना है। आई होप यहाँ पे कुछ टाइपो मिस्टेक है, दिस इज नॉट 8, दिस इज बी, ठीक है। सो आई नो सी से बड़ा तो डी है, तो सी क्या कैंसिल हो गया, राइट। अनदर थिंग दैट आई सी इज 21 है, यहाँ पे 22 है, काफी कम डिफरेंस है नंबर ऑफ क्वांटिटी में, बट प्राइस में डिफरेंस काफी ज्यादा है, राइट। 275 और 345, ये डिफरेंस काफी सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू दिस। हाउ डू आई चेक इट? देखो 21 का अगर मैं 22 करूं तो मतलब सी 22 इज एटलीस्ट मोर, हाँ मतलब अगेन दिस इज ए शॉर्टकट जो वैसे तो मैं क्लास में बताता हूँ, बट ठीक है एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सेट मैं यहाँ बता देता हूँ कि हाउ डू वी कंपेयर कि कौन सा नंबर बड़ा है। सी 21 से 2 एटलीस्ट 10% से तो ज्यादा बड़ा है। अगेन 21 का 10% कितना हुआ 2.1, ठीक है। 22 21 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, विच इज लेस देन 2.1, विच मींस 22 इज लेस देन 10% बड़ा देन 21, राइट। एटलीस्ट 10% कम बड़ा है। हाउएवर इफ यू सी 345 जो है वो इससे 10% से ज्यादा बड़ा है, राइट, क्योंकि 275 का 10% कितना होता है 27, so 27 कितना होगा 290 या फिर 300 के आसपास ही पहुंचेगा। यहाँ पे नंबर इज 345, which means 345 is at least 10% bigger than 275. However, 22 is less than 10% bigger than 21, which means बड़ा कौन सा होगा, आपका डी वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा फ्रैक्शन में, ज्यादा परसेंटेज में बढ़ी है। तो आई कैन से कि ए बी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। विद द सेम लॉजिक नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर बी एंड डी, तो बी एंड डी कितना है 14 है 21 है, इसको मुझे कंपेयर करना है। सो आई कैन जस्ट टेक द रेशियो 7 2 14, 7 3 21, सो दिस इज 2:3, ठीक है। देख लेते हैं 3 इज बेसिकली 50% है इसका, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं कि यार 504 भी इसका 50% है या नहीं है। हाउ डू आई कैलकुलेट, 345 में इसका हाफ ऐड कर लूं, विच इज 172 समथिंग, तो ये कितना आता है, ये डेफिनेटली 500 से ज्यादा आएगा, राइट। 7 4 11 3 4 5, ये 517 समथिंग आता है। तो मुझे पता है कि 504 345 का 50% से कम है, विच मीन्स बी बड़ा नहीं होगा, सो द आंसर हैज टू बी डी। तो यहाँ पे मैं आंसर डायरेक्टली डी मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। काफी 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आई वुड से हाँ थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ये, बट इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। अगेन दिस कैन बी अ परफेक्ट डेमो कि क्लासेस मैराथन सेशंस जो मेरे एडवांस्ड वर्कशॉप्स है उनका लेवल यही होगा। एंड दीज आर द ट्रिक्स दैट आई से कि सी आपने भले ये पूरा टेबल बना के सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, आपने निकाल लिया नंबर ऑफ यूनिट्स, बट स्टिल टू आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आपको यू हैव टू बी रियली फास्ट विद योर कैलकुलेशन, राइट। उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज कि पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर देम एंड आंसर। सो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी एंड थर्ड का सी। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट। यार अगर पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, मिलेगा नहीं तुमको कहीं यूजुअली, ठीक है। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट थोड़ा कमेंट करके बता दो हाउ वाज द लर्निंग, एंड शेयर कर दो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेट थॉरोली बिकॉज आई एक्चुअली डिड इट, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। आई विल सी यू अगेन टुमारो।